علی رسول اللہ سٹیج پر تشریف فرما پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین اور میرے سامنے موجود کراچی کے جمہوریت پسند جمہور نواز دوستو عزیزوں، آج آپ اس پارک میں اسٹیڈیم میں اس بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں اور یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محترمہ مادر جمہوریت محترمہ فاطمہ جناح ان کے دور سے، ان کا ساتھ دینے کے دور سے آج تک آپ ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس ملک کے اور اس ملک کے مفاد کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنی تحریک کا آغاز گجرانوالے سے کیا اور 16 اکتوبر کو کیا، جو کہ پاکستان کے پہلے سیاسی جمہوری وزیر اعظم جناب لیاقت علی کا یوم شہادت تھا۔ اور آج یہ دوسرا جلسہ کارساز کے دلدوز ثانیہ کے جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور آج ہم ان کو یاد کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں جمہوریت کے دشمنوں سے، جمہوریت کو اس ملک میں نہ چلنے دینے والوں سے، کہ کیا کارساز کے اس ثانیہ کے بعد کثیر تعداد میں شہداء کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا کراچی کے لوگوں کی یا پاکستان کے لوگوں کی جمہوریت سے محبت ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ میں ذکر کر رہا تھا اسی طرح جناب لیاقت علی کے یوم شہادت کا، اسی واقعہ کی آڑ میں اور اس کے ذریعے پہلے ہمارے اس عزیز ملک میں سول بیوروکریسی غلام محمد کی شکل میں، سکندر مرزا کی شکل میں، چودھری محمد علی کی شکل میں، پہلے اس نے پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی حکومت پر قبضہ کیا اور ملٹری بیوروکریسی کی مدد سے کیا، اور اس کے بعد ملٹری بیوروکریسی سامنے آ کر عریاں ہو کر سامنے آئی اور اس نے اس ملک پر اپنا قبضہ جمایا۔ کشمیر تو فتح نہیں کر سکے لیکن اپنے ہی ملک کو فتح کیا اور بار بار کیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی یہ تحریک جمہوریت کی بحالی کے لیے، سچی جمہوریت ملک میں لانے کے لیے، اس ملک میں عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے ہے، ان کی ایک جمہوری منتخب حکومت کے ذریعے ان کی مشکلات کو، ان کے مسائل کو حل کرنے اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ میدان میں آئی ہے۔ عمران کہتا ہے، اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ چوری کو چھپانے، اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ چوری کو چھپانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، چوری کو چھپانے کے لیے نہیں، یہ تمہاری چوری، تمہاری چینی چوری، تمہاری آٹا چوری، تمہاری پیٹرول چوری، تمہاری جمہوریت چوری، تمہاری ووٹ چوری، اس کے خلاف اور اسے ختم کرنے کے لیے میدان کے اندر آئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے تعاون سے، عوام کی مدد سے، عوام کے ساتھ دینے سے انشاءاللہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ میرے محترم حضرات، خواتین و حضرات، دوسری بات یہ کہی جاتی ہے تکرار کے ساتھ
तसलसल के साथ कि ये करप्ट लोग हैं, करप्शन को बचाने के लिए आए, चोरी और करप्शन को बचाने के लिए। माली करप्शन, अखलाकी करप्शन बुरी है, लेकिन मैं ये समझता हूं और मुझे यकीन है आप इत्तेफाक करेंगे कि सबसे बड़ी और बदतरीन करप्शन अवाम के मैंडेट को चुराना है, अवाम के मैंडेट को तब्दील करना है, वोट के बक्से को बदलना, वोट के बक्से में एक बक्से में जीतने वाले बक्से से निकालकर दूसरे बक्से में, हारते हुए बक्से में वोट डालना, आरटीएस सिस्टम को बंद करना, पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकालना। चोरी के साथ नहीं किया गया, डाकुओं जैसी हरकतें हुई, खुलेआम हुई, किसी डर के बगैर हुई, इसलिए कि इसके पीछे वही थे खाकी वाले जिनका जिक्र मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया है। उनकी सरपरस्ती में और उनकी वजह से ये सारी मुसीबत आई। ये मुसीबत जिसे आज हुकूमत कहते हैं, ये मुसीबत जिसे आज इमरान और सिलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं, और उनके आने के बाद आप खुद अच्छी तरह जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरह कि आपकी और मुल्क के बाकी अवाम जो हैं उनकी क्या हालत हुई है इन 2 सालों के दरमियान। महंगाई ने किस तरह अवाम को अपनी चक्की में पीसा है, 2 वक्त की रोटी का मोहताज, नाने जमी का मोहताज कर दिया है। और ये बात करते हैं रियासत मदीना की। रियासत मदीना तो वो रियासत थी कि जिसके हुक्मरान ये कहते थे कि इंसान नहीं, एक जानवर, एक कुत्ता, वो भी ममलकत के किसी दूर दराज कोने में, अगर वो मर जाए और भूख से मरे, अगर वो भूख से मरे तो उसकी जिम्मेदारी हुक्मरान पर होगी, हम पर होगी। रियासत मदीना के हुक्मरान ऐसे थे, और ज़बानी जमा खर्च नहीं, अमलन रियाया के अवाम के हालात से आगाह भी रहते थे और उसका मुदावा करने की मुसलसल दिन रात कोशिश में भी लगे रहते थे। ये कैसी रियासत मदीना है जिसमें हमारी मोहतरम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को, बच्चों को अमन हासिल नहीं, तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, सिक्योरिटी नहीं, उनके जान माल इज्जत महफूज नहीं, ना औरतों के, ना बच्चों के, ना आम आदमी के, और ना उसकी मुश्किलात का किसी को एहसास है। वो किसी ने कहा है ना कि अवाम जिस चक्की में पीसे जा रहे हैं, जुल्म की चक्की में, बेइंसाफी की चक्की में, महंगाई की चक्की में, उसका एहसास भी नहीं है, एहसास तक नहीं है हुकूमत को कि तुम शाखे गुल पे जमजमों की धुन तराशते रहे और नशेमनों पे बिजलियों का कारवां गुजर गया। हाल ये है, अवाम किसी से भी पूछ कर देंगे, हत्ता के तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और वोटर्स, वो भी अगर दिल पे हाथ रख के उनसे बात की जाए कि आप दिल पे हाथ रख के कहें कि किस हाल में, आपके साल में, बाकी तो छोड़े, आपके साल में, तो उन्हें भी मानना पड़ेगा, उन्हें भी कहना पड़ेगा कि इस हुकूमत के, इस दौरे हुकूमत में जितनी जिल्लत, जितनी भूख, जितनी परेशानी, जितने मसाइल, जितने मुश्किलात का सामना आम आदमी को है, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में भी उसकी मिसाल नहीं मिली। और उसके साथ इनके पास एक ही जुमला है, एक ही फिक्रा है कि बस घबराओ नहीं, हमें कुर्सियों पर बैठे रहने दो, घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह तुम्हारे हालात इससे भी बदतर करेंगे। ये इनका मोटो है, ये इनका नारा है, ये इनकी सोच है कि क्या हुआ अगर अवाम तकलीफ में है, मुश्किल में है, तो क्या हुआ, हम तो अपनी कुर्सियों पर विराजमान हैं और हमारे पीछे वही खड़े हैं जो हमें लेकर आए, बड़े खुश हैं इस बात पर, एक सफ़े पर हैं, एक सफ़े पर। और किसी ने ठीक कहा ना कि पाकिस्तान में और दुनिया में, कहना चाहिए दुनिया में
सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। ये पेज जिस पर आप समझते हैं कि हम इकट्ठे हैं, ये पेज इंशाअल्लाह इस मूवमेंट की बरकत से, इस मूवमेंट की बरकत और आपके ताउन से इंशाअल्लाह ये वर्क भी, पाकिस्तान की तारीख का ये वर्क, ये भी इंशाअल्लाह पढ़ता जाएगा। और वो दिन आएगा जब पाकिस्तान में वाकई एक जमहूरी और मुंतखब हुकूमत होगी, जिसे अवाम के मसाइल का, महंगाई का, दूसरी मुश्किलात का एहसास होगा और उसके मुदावा के लिए, उसके इलाज के लिए उनके पास अहलियत भी होगी, सलाहियत भी होगी, और वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के इन हालात को बदलेंगे। मेरे दोस्तों और अजीजों, कहने की बहुत बातें, कायदीन मौजूद हैं, उन्होंने मुफस्सल खिताब करने हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के इन हालात को बदलने के लिए, इन मुश्किल हालात जिनमें से आवाम गुजर रहे हैं, उनसे निकलने के लिए जरूरत इस बात की है कि पीडीएम पूरे जोश और जज्बे और पूरी हिम्मत के साथ अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखे और अवाम का, आपका ताउन इस सिलसिले में हाजिर हो। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, जैसे मैंने कहा कि हालात बदलेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में सही मानों के अंदर जमहूरियत आएगी। हमें अपना हक, अपनी हुकूमत चुनने का हक हमें मिलेगा। जो गसब किया गया है, साल से गसब किया गया है, और अब इस दफा तो हद हो गई। हर मामले में न सिर्फ हुकूमत लाने वाले, उन्होंने हर मामले में हर तरह अवाम के मैंडेट को रौंदा, उसे पसे पुश डाला, बल्कि इसके अलावा आम जो कारोबार हुकूमत है वो भी जितना बुरा भला चला रहे हैं वही चला रहे हैं। इनमें तो इतनी भी अहलियत नहीं है कि मैं हुकूमत मिलने के बाद उसे चला सकें और अपनी लाइन पर, अपनी पट्टी पर चल सके। इतनी सलाहियत भी उनके अंदर नहीं है। छोटे छोटे काम जानने वाले जानते हैं, हर काम में उन्हीं का दखल है, हर काम उन्हीं के हाथ से होता है, वही करने वाले हैं। और ये सिर्फ हुक्मरानी का एक निकाब पहनकर, एक मुलम्मा अपने चेहरों पे सजा के वो हुक्मरानी के मजे ले रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी है, आपसे अपील भी है कि इस मूवमेंट को कामयाबी से हम किनार करें, इस मूवमेंट को लेके आगे चलें, ताकि पाकिस्तान के ये हालात बदलें और हम इस मुल्क में सुकून का सांस ले सकें। बहुत शुक्रिया।